Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, please accept my apologies for coming late to the class and keeping you on waiting. There was a meeting in Education Department on school safety and it was unavoidable. So therefore I had to attend the meeting. Today we will be discussing lecture number 5, which is on the development length, life splice in curtailment of reinforcement. But before we begin our new lecture, if you have any questions in the previous lectures or any other question related to the course, you can ask your questions, please. Okay, if there are no questions, so let's discuss this lecture. The topics of today's lecture are development length of compression reinforcement, ACI provision for development of tension reinforcement, and ACI provision for development of standard hook, dimensions and bends for standard hooks, various scenarios where LDH must be satisfied, splicing, curtailment. The objectives of today's lecture are that the students will be able at the end of the lecture to explain the importance of development length in concrete members to avoid bond failure and also to understand location of curtailment of reinforcement. Okay, before I start discussion on the development length, let me tell you a few things about these topics which will be discussed in today's lecture. You would have seen in the previous lectures that we finished our flexural design procedure, mechanics and steps, and we also were able to design one beam. There were several steps, like first of all the selection of size of the beam, and then the loads for which the beam shall be designed, and then the analysis of the beam. Fourth step was the step regarding the design, which involved some trials. We assumed small a and then calculated AS, both in the cases of rectangular and T-beams. And finally, we also prepared some sketch of the beam, because these sketches or drawings are finally delivered to the site for use at the site to execute the project. You would have seen in the drawings that the reinforcement is provided in a certain pattern, and some of the reinforcement is bent at 90 degrees with a hook at the end of the beam, and so on. These things are called detailing of reinforcement. The detailing of reinforcement is done at the final step, and this detailing must be reflected in the drawings. The detailing primarily includes the development length criteria of the ACI code, the splicing criteria of the ACI code, and the curtailment criteria of the ACI code. These are three main detailing parameters which must be provided in the drawing. So today we will be discussing these three detailing requirement of the ACI code. Okay, first of all, the development length. What is the development length? If you look at this picture on the right, basically this is a video which we have taken from the internet. In this video, you will see that a rod is being pulled out of this concrete cylinder, and a force P is applied such that this bar will finally come out of concrete when the force is gradually increased. So first of all, look at this video and then we will discuss the development length. This bar has been inserted in the concrete cylinders, and a tensile force is applied
on the bar to stretch the bar. There are two possibilities. Either the bar will yield if it does not come out of concrete, or it will not, it will just come out of concrete. Okay, you can see that the bar is being pulled out by the tensile force. Okay, so the coming out of bar in this manner is an indication that bond between concrete and steel has failed, isn't it? Okay, is it true? Yes, sir. If the bond between steel and concrete had been intact, what would have occurred in that case? Sir, yielding. G? elongation, sir. Sir, yielding हो जाती है, elongate हो Yielding जाती of the steel. The steel would have yielded then. The steel would have yielded instead of coming out of concrete. So whenever a pulling force or tensile force is applied on a bar which has been inserted inside concrete, there are two possibilities. One is the steel will yield, and the other, the steel will come out of the concrete block. Which one is desirable? The desirable is that the steel should yield, because we design our reinforced concrete structures on this basic assumption that bond between steel and concrete shall remain intact throughout the loading stages of the structure, or throughout the different stress stages of the structure or a member. Okay, so the undesirable mode of failure is the bond failure, and the desirable is the steel yielding, because we design for yielding. We design for yielding. We do not design for bond failure. And the bond failure, we want to make sure. By placement of the reinforcement in concrete up to certain length, and the length of embedment of reinforcing bar inside the concrete will make sure that the steel is not the steel does not come out of the concrete and it yields. Okay, so this length, which is required, the minimum length required, the minimum length of the steel bar required to make sure that the steel will not come out of the concrete and will yield, is called as the development length. Why is it called development length? It is called development length because this length, if provided, will make sure that the steel bar develops its full yield strength and it will not come out of concrete. This length of the steel bar inside concrete, if provided, will make sure that the steel develops its full, as the steel bar develops its full yield strength. So it is called development length. The length at which the length of embedment, the length of embedment, the length of the steel bar inside concrete is called embedment length, because it is embedded inside concrete. So it is the length of steel bar embedded inside concrete which will make sure that the steel bar develop its full yield strength. So this is the reason that this length, this minimum length, is called development length, because this length will make sure that the steel bar develop its full yield strength. I hope you understood this explanation. Okay. You would have seen several times in your homes that ceiling fan are hanged with some steel bar, and the steel bar are provided inside reinforced concrete slabs, and then the ceiling fans are suspended from these
steel bars. If you during the construction of reinforced concrete slab, embed a very small length of this steel bar inside reinforced concrete slab, then there is a risk that when the ceiling fan is suspended from the steel bar, the ceiling fan, the steel bar may come out of the reinforced concrete slab, and in this manner it will be called as failure of bond between steel and concrete, and it can become a life safety risk. Okay, so this embedment length, how much embedment length will be required, this we will learn today. Okay. Development length is the minimum length of the bar to be embedded in the concrete block so that the bar is yielded, which means develop its full yield strength but not pulled out of concrete block due to bond failure. If the provided embedment length is less than the development length, the bar will come out of the concrete block, which is termed as bond failure. The bond failure the nature of the bond failure will depend on the force applied. If the force applied is a direct pullout of reinforcement, which means a direct tension. So in the case of direct tension, as you have seen in the previous example, this was direct tension. Direct pullout of reinforcement will occur in members subjected to direct tension. But usually in reinforced concrete structures, direct tension is not applied. That is, flexural tension is applied on members, as you have seen in the case of beams, that it is the flexural tensile stress which causes cracking in beams. So in the case of flexural tensile stresses, the reinforcement and the bond failure between reinforcement and concrete can be of two types. One is horizontal splitting, when a horizontal crack appears in the concrete beam, and the other is vertical. This kind of vertical splitting or vertical crack appears inside the concrete, and in this manner the bond between steel and concrete will break, and once the bond breaks, the resistance of steel which is offered to prevent the failure of reinforced concrete beam will end, and then the beam will fail, because if there is no bond between steel and concrete, then the strains in steel and concrete will be different. If you remember, there was a basic assumption in the mechanics of reinforced concrete structures which we studied in the very beginning, that bond between steel and concrete shall remain intact throughout the different loading stages. So if at any stage the bond between steel and concrete breaks, then the strain in steel and concrete will be different, because we provide reinforcing bar in concrete in order to prevent the cracking of concrete due to tensile stresses, and this can be ensured only if steel is perfectly bonded with concrete, because this will make sure that whenever there is elongation in concrete member, this elongation will be collectively resisted by steel bar and concrete, which means that strain in steel and concrete at the location where steel has been provided in reinforced concrete beam must be same. The strain will only be same in a reinforced concrete members at the location where reinforcement has been provided if bond remains intact. If bond fails, then the strain in steel and concrete will be different. There will be a slip between steel and concrete, and relative strains will appear, or relative movement will appear in steel and concrete, and in this manner the reinforced concrete beam can fail before reaching its ultimate capacity if bond fails before that. So we should make sure that the bond does not fail before yielding of steel. Okay.
ये मैकेनिक्स ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की थ्योरी में हम बहुत तफसील में इस बात को पढ़ चुके थे कि स्टील और कंक्रीट के दरमियान बॉन्ड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि जब आप इस पे लोड डालेंगे कंक्रीट की बीम पर, तो अगर आप ये इमेजिन करें कि स्टील का बार आप कंक्रीट के अंदर डालें, तो इस तरह डालें कि लेट से उसमें आपने एक कंड्यूट, एक पाइप रखा है प्लास्टिक का, और उसके अंदर आप स्टील बार डाल दें और उसके स्टील और बार और कंक्रीट के दरमियान कोई बॉन्ड ना हो, तो फिर जाहिर है कि जब स्टील में कंक्रीट में स्ट्रेन आएगा उस लोकेशन पे जहाँ आपने स्टील का बार रखा है, तो स्टील का बार और कंक्रीट चूँकि एक कंपोजिट स्ट्रक्चर, एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर के तौर पर उसको रिजिस्ट नहीं करेंगे, लिहाजा ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि प्लेन कंक्रीट है और कंक्रीट का बीम फेल हो जाएगा। और इसकी मिसाल ऐसे है कि जिस तरह कि आप कोई टिम्बर बीम, अगर घर में आपका कोई टिम्बर पीस हो, एक शीट हो, वुड शीट हो, और आप उसको थोड़ा सा क्रैक हो जाए, तो आप आमतौर पे क्या करते हैं कि उस क्रैक के क्रॉस आप एक छोटी सी स्टील की पट्टी अगर आप नेल करते प्रॉपरली, तो वो जो आप का क्रैक है वो मज़ीद वाइड नहीं होगा। इस किस्म की सिचुएशन में बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह के टिम्बर का एक पीस है, इधर एक मसलन छोटा सा क्रैक भी आ गया है, तो आप एक क्रॉस तक क्रैक एक पट्टी इस तरह से लगा दें छोटी सी, और इसमें नेल कर दें इसको। अगर ये प्रॉपरली नेल हो तो जब इसके ऊपर आप मज़ीद लोड डालेंगे तो अब ये स्टील की पट्टी मिल के टिम्बर बीम को मज़ीद स्ट्रेन में आने से बचाएगी, या इसका स्ट्रेन ये इधर इस जगह पर ले लेगी। लेकिन अगर आप स्टील की पट्टी को बिल्कुल लूजली इसके साथ अटैच करें, तो फिर और टिम्बर का जो शीट है ये और स्टील के स्ट्रिप्स के दरमियान अगर रिलेटिव मूवमेंट पॉसिबल हो, तो फिर ये स्टील का स्ट्रिप इसको बचा नहीं सकता है और इसमें रिलेटिव स्ट्रेन आएगा। सो दिस इज बेसिकली the concept of perfect bonding between steel and concrete. I hope this is clear. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, फिर इसमें there can be two types of situations जहाँ पर स्टील कंक्रीट में जब हम एम्बेड करते हैं, तो there can be two types of situation to which the steel bar may be subjected. One, एक कंप्रेशन है कि आप स्टील बार को कंप्रेस करें कंक्रीट के किसी मेंबर के अंदर, जिस तरह कि आपने ये वीडियो भी देखी। तो इन दिस वीडियो लेट्स से दिस फोर्स was not tension, this was a compression force. If this was a compression force, you can imagine कि कंप्रेशन जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे, तो स्टील का बार जहाँ एंड होगा कंक्रीट के अंदर, तो नीचे जो कंक्रीट का वॉल्यूम है, आप जब स्टील को पुश करेंगे तो यू विल बी पुशिंग स्टील बार अगेंस्ट दैट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो इट विल बी हार्ड फॉर यू, यानी ज़्यादा लोड उसको चाहिए कि वो उसके अंदर उसको कंक्रीट के अंदर स्टील बार जा सके। तो दिस मूवमेंट ऑफ स्टील बार इनसाइड कंक्रीट विल बी वेरी डिफिकल्ट। फॉर दिस रीज़न अगर आप कंप्रेशन फोर्स किसी स्टील बार पे अप्लाई करेंगे जो कि कंक्रीट के अंदर हो, तो आपको बहुत कम एम्बेडमेंट लेंथ में ये डेवलपमेंट लेंथ अचीव हो जाएगी। मतलब ये है कि स्टील और कंक्रीट के दरमियान जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटेगा कंप्रेशन मेंबर में। जब आप कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्योंकि उसके आगे कंक्रीट है, तो वो उसके अंदर घुसेगा नहीं, और ये बॉन्ड जो स्टील और कंक्रीट का है ये बहुत थोड़े से लेंथ में अचीव हो जाएगा। अनलाइक टेंशन में जब आप उसको खींचेंगे, तो उस खींचने में स्टील का बार जो है वो सिर्फ कंक्रीट के साइड पे जो कंक्रीट है स्टील बार के ऑल अराउंड स्टील, तो उसके साथ फ्रिक्शन की वजह से और उसके साथ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी वजह से बस ये रेजिस्ट करेगा, ठीक है ना, और कोई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है रेजिस्ट उसको नहीं करेगा। इस वजह से कंप्रेशन में हमें इतनी डेवलपमेंट लेंथ नहीं चाहिए, लेकिन टेंशन में हमें डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा चाहिए। और रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में invariably you will always have some tensile forces. तो फॉर दिस रीज़न आगे जितने भी स्लाइड्स हैं उसमें हम डेवलपमेंट लेंथ फॉर रिइंफोर्सिंग बार्स सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ये नहीं पढ़ेंगे। उसका फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो इतना रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में इस किस्म का मेंबर बहुत कम होगा या बिल्कुल होगा भी नहीं कि जिसमें आपको प्योर कंप्रेशन फोर्सेस होंगे।
अगर आप कॉलम को भी देखें तो कॉलम में भी फ्लेक्चरल स्ट्रेसेस आ जाते हैं, जब वो अर्थक्वेक में वाइब्रेट करेगा तो उसमें आ जाएंगे। लिहाजा कंप्रेशन जो है आगे हम नहीं पढ़ेंगे। द डेवलपमेंट लेंथ फॉर रीइंफोर्सिंग बार सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, और हम सिर्फ उस केस को पढ़ेंगे व्हेन द रीइंफोर्सिंग बार आर सब्जेक्टेड टू टेंशन। वो ज्यादा गवर्निंग क्राइटेरिया है और आगे हम उसी को पढ़ेंगे। In the next portion of the lecture, we will discuss the development length of tension reinforcement only because it is the governing criteria in most of the cases in reinforced concrete structures. This is a simple derivation or simple concept, mathematical concept. Mathematical derivation when a reinforcing bar is inserted inside a concrete block and the length of embedment is LD. Let's say a force T is applied on this reinforcing bar. So the force T is applied. This is the applied force. This is the applied force. What is the resisting force? The resisting force is this. Okay, this is the applied force. The applied force is T, let's say T. The maximum value of this will be ASFY, area of steel multiplied by Fy. And the resisting force R, according to the criteria, that the steel bar should yield but not come out of concrete, must be such that R offered, the resistance offered by this steel bar shall be greater than or equal to this T, pulling force. So if this R is at least equal to T, the resistance offered by the steel bar. So can you imagine and tell me what will contribute to this resistance? What are the parameters which will contribute to this resistance offered by the steel bar when it is inserted inside concrete? Can you tell me something? ये रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा तो ये रेजिस्टेंस में कौन कौन सी चीज़ें हिस्सा लेंगी? देखिए इसमें एक तो स्टील बार जो इसके इंसर्टेड है तो इसकी लेंथ है, अगर लेंथ ज़्यादा हो ठीक है तो इस पर डिपेंड करता है। फिर इसका डायमीटर है, अगर आप देखिए इसका रेजिस्टेंस जो है इसके सरफेस पे इस तरह से होगा, इन सरफेस पे ये रेजिस्टेंस इससे ऑफर होगा, रेजिस्टेंस एंड देन तो ये सरकमफ्रेंस हो गया, ये सरकमफ्रेंस इसका लेट्स से पाई डी हो गया, पाई डी, एंड द लेंथ ऑफ एम्बेडमेंट इज एल डी। तो दिस इज द एरिया विच विल रेजिस्ट दिस फोर्स। अच्छा, अब ये एरिया तो रेजिस्ट करेगा, लेकिन कंक्रीट का जो बॉन्ड है बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट, ये भी इसको, क्योंकि ये बॉन्ड जितना ज्यादा होगा एफ बी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एफ बी। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा तो उसको फर्मली इट विल होल्ड द स्टील बार। ठीक है, तो असल में ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है। दिस टी इज एरिया इनटू स्ट्रेस एंड दिस केस ASFY। आर जो है ये भी रेजिस्टेंस फोर्स है, तो ये भी एरिया होगा, एरिया मैंने बता दिया पाई डी टाइम्स एल होगा, और इसका जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट का बॉन्ड स्ट्रेंथ इट विल बी FB। तो ये अगर आप देख लें इसको, ये इक्वेशन है डेवलपमेंट लेंथ मल्टीप्लाई बाय पाई DB इनटू द FB, वेयर FB इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ। FB बॉन्ड स्ट्रेंथ को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि लेट्स से अगर ये कंक्रीट का ब्लॉक कंक्रीट से न बना हो और ये मड से बना हो तो उसमें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम होगी और ये बहुत आसानी से निकल आएगा। इसका मतलब है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ का रोल है कि जितना आप अच्छी तरह ग्लूड होगा या बॉन्डेड होगा टू द कंक्रीट, तो इतनी उसकी डेवलपमेंट की रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इतनी अच्छी होगी। तो वन इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, द अदर इज एरिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू FYAB। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखे, FB like other properties of concrete can be expressed in terms of the square root of FC prime. You would have seen that certain properties of concrete can be expressed in terms of the compressive strength of concrete. This bond strength can also be expressed in terms of the square root of compressive strength times alpha, and this is this, and FYAB, Fy is Fy, and this is area of round bar is pi d square divided by 4. So if you want to make this sign of
greater than or equal to, just equal to, because this, at least it must be equal to this. This dB will be cancelled with this dB, phi will also be cancelled with phi, and you will be left with development length is equal to Fy d divided by 4, and alpha Fc prime will come in denominator. So you will end up with this equation. Now you can see the development length depends on which parameters. Tell me, what are the parameters on which development length depends? ये ग्रेड ऑफ स्टील है सर, कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है सर, और दूसरा ये डी है सर, Diameter of the bar, bar diameter. यस, बार डायमीटर है सर, यस। आप देख सकते हैं कि बार डायमीटर और यील्ड स्ट्रेंथ के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी अगर बार डायमीटर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट लेंथ आपको ज्यादा चाहिए। इस तरह अगर स्टील का ग्रेड बढ़ेगा यानी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो उसके लिए आपको डेवलपमेंट लेंथ ज्यादा चाहिए। और कंक्रीट की स्ट्रेंथ, अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उससे डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। यस सर। Okay. So let's see what is the equation for the development length given by the ACI code. The ACI code equations is more or less the same. This is the ACI code equations. These are many parameters, but these parameters will be discussed on the next slide, and finally you will end up with a very simple equation. You can see Fy and lambda Fc prime are here. Excuse me sir, Please. What is your name? सर ये सर माय नेम इज शरफ खान सर। Okay. सर ये जो हम बार सर कंक्रीट के अंदर जो प्रेस करें सर, ये बार पहले से अंदर पड़ा हुआ है या सर हम बाद में इस पे हम प्रेस करेंगे सर? नहीं, हम रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं ना। तो रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर में तो हम स्टील पहले बांधते हैं और उसके बाद कंक्रीटिंग करते हैं ना, इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो जब सर ये जो बार हम जब बाहर निकालते हैं सर, तो ये बार पहले से अंदर पड़ा हुआ है सर, या हम बाद में फिर इसको प्रेस करते हैं सर? नहीं, पहले से पड़ा हुआ है ना, पहले से स्टील बार पड़ा हुआ है, हमने फिर कंक्रीटिंग की और फिर उसके साथ बांड बन गया, जब हार्ड हो गया उसके बाद हम खींच रहे हैं उसको। ओके, थैंक यू। जिस तरह मैंने आपको सीलिंग फैन की मिसाल दी ना कि सीलिंग फैन के लिए आप किस तरह क्या करते हैं। सीलिंग फैन में अगर आपने देखा हो तो जब लोग स्लैब के लिए कंक्रीट की कास्टिंग करते तो उसमें पहले से एक बार ऊपर इंसर्ट कर देते हैं और फिर कंक्रीटिंग के साथ उसका हार्ड बन जाता है। हाँ, अगर किसी ने न किया हो तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस टॉपिक के साथ उसका ताल्लुक नहीं, वो अलग चीज़ है। अगर जो डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट उसमें भी है कि आप कितने बार तक उसके अंदर, लेकिन उसका बांड कंक्रीट के साथ नहीं बनेगा, उसके लिए हम एपॉक्सी इस्तेमाल करते हैं, हाई स्ट्रेंथ एपॉक्सीज। उसमें इस तरह करते हैं कि पहले ड्रिल करते हैं और ड्रिल में जो होल होता है वो इसके स्टील बार का जो डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर उसमें हम एपॉक्सी डालते हैं, फिर ये स्टील बार डालते हैं और फिर 24 घंटे डिपेंड करता है एपॉक्सी पर कि कितने वक्त में वो हार्ड हो जाता है। तो जब वो हार्ड हो जाता है तो फिर उसको जब खींचेंगे तो उसमें से निकलता नहीं है, वो बाद वक्त ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन उसमें फिर कंक्रीट की स्ट्रेंथ सच नहीं होती, उसमें स्ट्रेंथ होगी एपॉक्सी की, जो कि इस पर्पस के लिए बनाए जाते हैं जब हमें इस किस्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। अच्छा, so we were discussing this ACI code equation. The ACI code equation in the denominator is this parameter which is CB plus KTR divided by DB. इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप ACI का सेक्शन है 318.19 25.4.2.4 इसको देख लें। आप इस एक बात को आप नोट कर लें कि हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 1 कोर्स में, तो यही चीज़ें आप रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन 2 के कोर्स में और आगे के कोर्सेज में भी पढ़ते हैं, लेकिन हर एक का लेवल डिफरेंट होता है। इस वक्त जब हम डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहे हो तो हम इसको एक सिंपल अंदाज में लेते हैं, आगे आप फिर उसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस वक्त हम क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तमाम चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ फेमिलियर हो जाएं, टर्मिनोलॉजी आपको आ जाए, टर्मिनोलॉजी आप सीख लें और थोड़ी बहुत आप चीज़ें भी
कर सकें और सीख लें। हर चीज़ अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो इसमें हर एक टॉपिक इस तरह है कि ये इसके लिए पूरा एक लेक्चर चाहिए या दो लेक्चर चाहिए इसमें एक टॉपिक को कवर करने के लिए। तो इसलिए ये जो CB + KTR डिवाइड बाई DB का जो डिनोमिनेटर में आपको नज़र आ रहा है, इसमें CB तो कवर है, और ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो चीज़ें हैं वो किस तरह बांड को देखें। अगर आप रिइंफोर्स कंक्रीट बीम की बात करें और तो उसमें अगर नीचे कवर बहुत ही कम हो, इफ द कवर इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट लेंथ, यानी बांड अच्छा बनेगा स्टील का कंक्रीट के साथ कि नहीं? नो सर। अच्छा बांड नहीं बनेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये CB जो है उन्होंने कहा है कि 1.5 to 2 इंच अगर ये हो, 1.5 इंच के वक्त में क्या होगा, 2. एक खास हद तक हो तो उसके बाद तो 2.5 से ज़्यादा कवर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मिनिमम कवर होना चाहिए। बाज़ वक्त हो सकता है किसी वजह से कवर बहुत ही कम रह जाए, प्रैक्टिकली तो काफ़ी सारे मसले पेश आते हैं, तो अगर उसकी वजह से कवर कम आ गया तो ये उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा डेवलपमेंट लेंथ पे। तो इसका मतलब है कि कवर भी कुछ होना चाहिए मिनिमम। फिर आगे जो है आपका KTR असल में एक पैरामीटर है जो डिपेंड करता है कन्फाइनमेंट पे। आप एक स्टील बार कंक्रीट के अंदर से आप निकालना चाहते हो और आपने कंक्रीट को अच्छी तरह कन्फाइन किया हो, कन्फाइन का मतलब उसको आपने हाथ से दबाया हो वॉलेट से, तो वो कैसे हो, जिसे आपने स्टिरअप और टाइज देखी थी, स्टिरअप एंड टाइज, स्टिरअप्स आपने देखी थी ना बीम रिइंफोर्स कंक्रीट जब बीम हम डिजाइन कर रहे थे तो उसमें स्टिरअप्स भी थी। ये स्टिरअप्स असल में इस रिइंफोर्समेंट को, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट को कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करती हैं, यानी कन्फाइन करती हैं साइड से। तो अगर आप साइड से कन्फाइन करें अच्छी तरह से तो आपको डेवलपमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अच्छी कन्फाइनमेंट के लिए, अच्छी कन्फाइनमेंट के बाद आपका बांड अच्छा बनता है और डेवलपमेंट लेंथ में आपकी लेंथ जो है आपको कम रिक्वायर्ड होती है। तो दिस इज ए पॉजिटिव इफेक्ट। कवर का भी पॉजिटिव इफेक्ट अगर ज़्यादा हो, और डायमीटर ऑफ द बार है द नेगेटिव इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है, ये पैरामीटर जो है इसको मुख्तलिफ अंदाज में कोड ने किया हुआ है, और कोड कहता है कि इसकी जो सबसे ज़्यादा कंडीशंस के लिए वैल्यू आ रही है वो 1.5 है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर इनटू दिस डिटेल वी विल यूज दिस वैल्यू ऑफ 1.5। इसकी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 2.5 है, लेकिन उसके लिए कंडीशन बहुत सख्त है, क्योंकि अगर आप नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपको डेवलपमेंट लेंथ की वैल्यू कम रिक्वायर्ड होगी, और अगर आप इसको कम करेंगे तो ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ। तो ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ तो सेफ है, कम डेवलपमेंट लेंथ कैन बिकम अनसेफ। तो इसलिए हम 1.5 की वैल्यू इसमें डालते हैं एज पर कोड के। ज़्यादा प्रैक्टिकल कंडीशन ऐसी होती है कि ये 1.5 की वैल्यू हमें देगा तो हम 1.5 से रिप्लेस करेंगे, और ये इतना सारा बड़ा जो पैरामीटर हमारा लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा। आगे लैम्डा है और साई T है, साई E है, साई S है, साई G, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। दिस इज द table given by the ACI code. These are called modification factors, which are discussed in table 25.4.2.5. Lambda is a factor which depends on the type of concrete. If it is lightweight concrete, then this factor is 0.75. If it is normal weight concrete, it is 1. So normally we use this normal weight concrete, so lambda is taken as 1. Lightweight concrete is very rarely used. Okay, then you have a reinforcement grade. If you are using grade 60 or 40, which is usually the case, so we will be using this psi S equal to 1. So this will also go out of the equation. Then there is epoxy psi E. Psi E is used whenever psi E, if the steel bar which is inserted inside concrete is uncoated, so this will be psi E will be equal to 1. ये कोटिंग हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी ऐसे लोकेशन में अपने रिइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करें और कंस्ट्रक्ट करें कि जहां पर ये ख़तरा हो कि स्टील बार को जंग लग जाएगा एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से। जिस तरह के सी साइड पे सल्फेट होते हैं हवा में, तो वो सल्फेट की वजह से स्टील को जंग लग सकता है और कंक्रीट एरोड हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ द एरोजन ऑफ कंक्रीट एंड रस्टिंग ऑफ स्टील, उस वक्त उसमें बाज़ वक्त हम स्टील को कोट करते हैं एक एंटी रस्टिंग मटेरियल से। एंटी रस्टिंग मटेरियल फॉर
स्टील, तो उससे जब कोटिंग करते हैं उससे एंटी रस्टिंग तो इम्प्रूव होती है, लेकिन उसकी जो बांड है, स्टील का बांड, वो कंक्रीट के साथ कमज़ोर पड़ जाता है। लिहाजा जब अगर वो हो तो आपका ये बांड लेंथ बढ़ जाएगा। तो अगर साई कोटिंग आप इस्तेमाल करेंगे तो आप 1.2 से लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर आप ये फैक्टर आपका जो है 1 होगा। तो आमतौर पे हम इसका कंडीशन इस तरह होती है कि ये साई 1 ही होता है। देन देयर इज अ साइज फैक्टर साई एस। तो साई एस में जो है, दिस इज साई जी, आई एम सॉरी, दिस इज साई जी ग्रेट, साई एस ये है। तो साई एस में there are two conditions. For number 7 and larger bars, which means number 7, number 8 and larger, we use this psi s is equal to 1. And for 6 and smaller, we use psi s is equal to 0.8. इसका मतलब ये है कि जब diameter of the bar आप कम करेंगे तो इसे a positive effect on development length. Development length आपको कम चाहिए तो उसका जो है ये 0.8 फैक्टर बन जाएगा। और फिर आखिर में साई टी है, इसका मतलब ये है इसमें दो हैं, एक तो 1 है और दूसरा 1.3। अगर आप रीइंफोर्सिंग बार इस जगह पर इस्तेमाल करेंगे, इफ मोर देन 12 इंच ऑफ फ्रेश कंक्रीट प्लेस बिफोर हॉरिजॉन्टल बिलो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट, आपके पास ये बीम है और इस बीम में आपने रीइंफोर्समेंट इधर ऊपर प्लेस की, ठीक है जी, ये आपकी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आमतौर पर ऊपर प्लेस होगी। इसके नीचे अगर 12 इंच तक कंक्रीट है, 12 इंच कंक्रीट, तो फिर इस स्टील बार का जो डेवलपमेंट लेंथ होगा वो साई टी 1.3 से मल्टीप्लाई होगा, 1.3 से मल्टीप्लाई होगा। और दूसरी कंडीशन में, यानी अगर पॉजिटिव में इधर आपका स्टील बार पड़ा हुआ है तो इसके नीचे तो कंक्रीट नहीं है, वह 12 इंच ऑफ फ्रेश कंक्रीट प्लेस बिलो हॉरिजॉन्टल रीइंफोर्समेंट, तो इसके नीचे तो 12 इंच कंक्रीट नहीं है, लिहाजा इसमें साई टी 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें साई टी 1.3 से मल्टीप्लाई होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये अगर साई टी हम 1.3 ले लें और 1 ले लें, साई टी इज टेकन एज 1, और तो फिर आपके पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसमें आपके पास दो कंडीशन आ जाएंगे, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी फॉर नंबर 6 एंड स्मॉलर एंड नंबर 7 एंड लार्जर। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, सारी चीजें 1 1 1 हो गई। तो फॉर नंबर 7 एंड लार्जर वी हैव दिस इक्वेशन, and for number 6 and smaller bar we use this equation. Now I will ask you to calculate development length for number 6 bar, number 7 bar and number 8 bar using the appropriate equation, and Fy in first condition is 40 ksi, Fy is 60 ksi in the second condition, and you have to calculate development length for number 7 bar using this equation, and for number 6 bar using this equation with Fy is equal to 40, Fy is equal to 60. In both the cases, Fc prime is 3 ksi. Please calculate development length. सर नंबर 7 के लिए
जी बताएं आप। नंबर 7 के लिए कितना लेंथ रिक्वायर्ड है? Fy and Fc prime are in psi and diameter of the bar is in inches. Be careful about the units. सर ग्रेड 40 के लिए 31.95 और 60 के लिए 47.92। डेवलपमेंट लेंथ फॉर नंबर 7 बार दोबारा बताएं कितनी आ गई? सर ग्रेड 40 के लिए 31.95 और ग्रेड 60 के लिए 47.92। ठीक, नंबर 6 के लिए भी मालूम करें। Okay, in this manner you can calculate the development length required for different diameter of the bar in grades of steel. This is a table which will give you an idea about the development length for different diameter of the bar from number 3 to number 9. You can look at the values, the relevant equations have been used for grade 40. For number 3 bar, the development length requirement is 11 inch. For grade 60 is 17 inch. For number 4, 15, grade 60, 22, 19, 28, 22, 33, and so on. You can see that with the diameter of the bar, the development length increases, and also with the grade, increase in grade or yield strength, the development length increases. Okay. एक्सक्यूज मी सर। प्लीज सर ये फार्मूले में हम देखते हैं तो हमें कोई लोडिंग पे इसकी डिपेंडेंस नज़र नहीं आती। मतलब जी जी प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं लोड ज़्यादा हो तो उतना सरिये में मतलब खिंचाव ज़्यादा आएगा। तो क्या है ये डेवलपमेंट लेंथ लोड पे डिपेंड नहीं करना? बिल्कुल करता है, लेकिन इसमें हमने यील्ड पे लिया हुआ है ना। मतलब ये है कि वो लोड जो कि आपके स्टील बार को यील्ड करेगा तो उस पर डेवलपमेंट लेंथ की ये रिक्वायरमेंट है। अगर लोड कम होगा तो फिर डेवलपमेंट लेंथ भी कम रिक्वायर होगा। अगर आपने देखा हो ना, हमने जो डेरिवेशन की उसमें हमने टी फोर्स अप्लाई किया, तो उस टी फोर्स हमने कहा ASTFY के बराबर है, यानी इसकी ये स्टील की फुल कैपेसिटी के बराबर अगर लोड लगाया जाए। समझ रहे हैं आप कि नहीं? ये सर ठीक। अगर देखें आप एक 1 इंच एरिया, लेट से एरिया हमारे पास 1 इंच है, 1 इंच स्क्वायर, और यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास है 60 KSI, तो इट विल बी 60 किप पर स्क्वायर इंच। स्क्वायर इंच नीचे आ जाएगा और स्क्वायर इंच ऊपर होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब 60 किप आप लोड लगाएंगे तो फिर ये डेवलपमेंट लेंथ की कंडीशन है। अगर 60 किप से कम होगा तो ये डेवलपमेंट लेंथ की इससे रिक्वायरमेंट फिर कम होगी। तो ये फुल फोर्स के लिए है। अच्छा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम डिजाइन करते हैं तो हम स्टील को यील्ड पर ले जाते हैं और डिजाइन हम यील्ड के ऊपर करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब हम डिजाइन यील्ड के ऊपर करते हैं तो हम चाहते हैं कि जब यील्ड के ऊपर हमारा स्टील जब यील्ड के ऊपर हो, यानी यील्ड स्ट्रेंथ तक ये इसमें स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ तक चला जाए, तो उस वक्त ये उसमें से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस। इफ द लोड इज लेस देन दिस, तो फिर डेवलपमेंट लेंथ की जो ये इक्वेशन है, इससे आप डेवलपमेंट लेंथ कम रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। अच्छा, आप ये देख सकते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ की जो रिक्वायरमेंट है, तो इवन फॉर ए नंबर 4 बार अगर आप 160 का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम आपको 2 फुट डेवलपमेंट लेंथ चाहिए। अब अगर मैं आपको कहूं कि आप एक सीलिंग फैन है और उसको सस्पेंड करना है आपने एक स्टील बार विद ए हुक के साथ, तो हमारा तो स्लेब ही उसमें 6 इंच का स्लेब होता है या 7 इंच का, तो 2 फुट का, तो उसमें 2 फुट की तो जगह ही उसके अंदर नहीं है, तो मैं कैसे उसमें ये करूँगा? तो उसमें 2 बातें हैं।
एक तो ये कि ये जो हम जितनी भी रिक्वायरमेंट है दीज आर फॉर स्ट्रेट डेवलपमेंट। अगर हम कंक्रीट के अंदर स्टील को थोड़ा हुक दे दें, समझ रहे हैं ना, कंक्रीट के अंदर जब आप अभी आपने कंक्रीटिंग नहीं की हुई है और स्टील जब आपने फॉर्म वर्क में लिखा है तो आप यू प्रोवाइड 90 डिग्री हुक टू दिस और 180 डिग्री हुक। जब आप उसमें हुक देंगे, जब आप कंक्रीटिंग करेंगे और फिर स्टील के बार को आप पुल करने की कोशिश करेंगे तो हुक की वजह से थोड़ा सा कंक्रीट भी इंगेज हो जाएगा। जब वो कंक्रीट इंगेज हो जाएगा ना, कंक्रीट के वॉल्यूम को वो पाड़ेगा तो फिर ये स्टील का राड जो है उसमें से निकलेगा। तो उसकी वजह से या हुक जो है टेढ़ा हो जाएगा। तो उसकी वजह से डेवलपमेंट लेंथ, स्ट्रेट डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि जो हुक आपने अंदर दे दिया वो मैकेनिकल एंकरिंग प्रोवाइड करेगा और आप स्ट्रेट लेंथ पहले जो आप कर रहे थे उसके मुकाबले में अब काफ़ी कम डेवलपमेंट लेंथ आपको चाहिए होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना? यस सर। ये तो बहुत आसान है। अगर आप स्टील बार को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, निकालेंगे तो आराम से निकलेगा। लेकिन अगर आप स्टील को अंदर हुक कर दें, जब उसको फिर खींचेंगे तो फिर आराम से आप उसको खींच नहीं सकते। लिहाजा जब आप उसको हुक देंगे तो डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट में काफ़ी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली वी प्रोवाइड दिस डेवलपमेंट लेंथ विद हुक लाइक दिस। हम अगर एक हुक दे दें उसके अंदर, तो इसके लिए फिर इक्वेशन में 25 और 20 जो पहले लगा था डिनोमिनेटर में, इट विल चेंज टू 65। तो 50% से भी ज्यादा डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ इस LDH का मतलब है डेवलपमेंट लेंथ विद हुक। पहले सिर्फ LD था, दैट इज फॉर स्ट्रेट बार्स, एंड दिस LDH इज फॉर बार विद हुक। इसकी वजह से आप डेवलपमेंट लेंथ देंगे तो काफी कमी है। लैम्डा तो जाहिर है वो कंक्रीट का, तो ये 1 अगर हो जाएगा नॉर्मल कंक्रीट के लिए तो FYD भी डिवाइड बाय 65 FC प्राइम। पहले 25 और 40 था, 20 था, उसके मुकाबले में 65 बहुत ज़्यादा है। तो 50% से भी ज़्यादा डेवलपमेंट लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, यस सर। अब आगे हमें ये पढ़ना है कि डेवलपमेंट लेंथ तो हमने देख लिया, लेकिन ये हुक हम कैसे देंगे। तो हुक की भी ACI कोड ने रिक्वायरमेंट दी हुई है कि डेवलपमेंट लेंथ हुक की जो पहले डेवलपमेंट लेंथ हुक और उसका ग्रेड 40-60 के लिए आप देखें, पहले ये 11 इंच था, 5 इंच हो गया। इस तरह से काफ़ी डेवलपमेंट लेंथ हुक की, तो हमारा स्टील जो है कम लगेगा। डेवलपमेंट लेंथ विद हुक की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो गई विद हुक। फिर ये कंपेरिजन है स्ट्रेट डेवलपमेंट लेंथ एंड देन डेवलपमेंट लेंथ विद हुक, यू कैन कंपेयर, तो काफ़ी कम इसमें आ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हुक की क्या रिक्वायरमेंट्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हुक्स यूज्ड इन कंक्रीट, although there is another type of hook which is called seismic hook, but that is particularly used in the ties and stirrups. Straight bar के लिए, longitudinal bar के लिए, for longitudinal bar these 2 types of hooks are used. One is called 90 degree hook, this is called 90 degree hook, and this is called 180 degree hook. Okay, the ACI code says that the length of this hook, the length of the hook, which is called L extension, shall be equal to 12 dia bar if it is a 90 degree hook. इसका मतलब ये है कि अगर ये आधे इंच का सरिया हो, आधे इंच का, हाफ इंच राउंड बार अगर हो, तो ये हुक का जो लेंथ है ये 6 इंच हो जाएगा। The length of the hook will be 6 inch. The other requirement is that the bend shall not be sharp bend. जिस आप देख सकते हैं, this is a smooth bend. अगर आप sharp bend देंगे, sharp bend, तो sharp bend से स्टील जो है टूट जाएगा। Sharp bend like this is not permitted. The bend must be like this. Smooth bend with a curve, and the radius of this curve has been given here in the ACI code. That the minimum inside bend diameter, the diameter of this shall be 6 dB, which means that the radius will be 3 dB. Diameter of this circle, in order to ensure smooth bending of the steel, shall be at least 6 diameter of the bar for number 3 to number 8. नंबर 3 से लेकर नंबर 8 तक बार्स में आप ये ऐसे स्मूथ बेंडिंग करेंगे
और वो कैसे होगा, जब भी आपका जो डायमीटर है इस सर्कल का ये 6 डायबार के बराबर हो, और इसका मतलब है कि रेडियस 3 डायबार के बराबर हो। इधर आप इतना स्मूथ देंगे, इधर से डेवलपमेंट लेंथ LDH खत्म हो जाएगा, और आगे फिर आप जब इसको देंगे तो ये इस तरह करेंगे। इसके बाद फिर आप जब दोबारा स्ट्रेट होगा तो हुक की लेंथ, तो ये अगर 1/2 इंच का बार है तो 6 इंच हो जाएगा, और इधर से इधर तक इसका जो डायमीटर है ये होगा 3 इंच, क्योंकि डायमीटर ऑफ द बार 1/2 इंच अगर हो तो ये 6 इंच हो जाएगा, ये 6 इंच हो जाएगा इसका डायमीटर। और ये जो 3 इंच, this will be 3 inch because this is half, तो 6 into half is 3, और इसकी लेंथ 6 इंच आएगी। और हर एक डायमीटर के लिए आपको मालूम कर दे, नंबर 9 से 11 फिर 8 डायबार है, 14 10 डायबार है, वगैरह वगैरह। अच्छा, तो दिस वाज 90 डिग्री, 180 डिग्री हुक। 180 डिग्री हुक में एक्सटेंशन बहुत कम रिक्वायरमेंट है। दिस एक्सटेंशन is only 4 dB as compared to 12 dB. It is only 4 dB for 180 degree, and 2.5 inch whichever is greater. अगर 1/2 इंच का बार है तो 1/2 इंच में 2 इंच आएगा, लेकिन 2 इंच से चूंकि 2.5 इंच ज्यादा है तो कम से कम 2.5 इंच होना चाहिए, तो 2.5 इंच हो जाएगा 1/2 इंच राउंड बार के लिए। अच्छा, अब जी स्मूथ टर्निंग या बेंडिंग जो आप करेंगे, स्मूथ टर्निंग और बेंडिंग, इट इज द सेम एज द प्रीवियस केस, 6 डायमीटर ऑफ द बार। इस सर्कल का डायमीटर जो है ये 6 dB होगा, यानी कि 3 इंच इस केस में भी। इज दिस क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू? यस सर। एक इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हुक की लेंथ है कि कितना हुक आपको चाहिए, बस अननेसेसरली अगर आप लेंथ इससे ज्यादा करेंगे हुक का तो उसका फायदा नहीं है। हुक आपको कितना चाहिए, तो हुक आप 12 डायमीटर ऑफ द बार इन द केस ऑफ 90 डिग्री हुक, एंड 4 डायमीटर ऑफ द बार, बट should not be less than 2.5 inch for 180 degree hook। और जो बेंडिंग है, बेंडिंग आप शार्प नहीं करेंगे, स्मूथ करेंगे, तो उस स्मूथ बेंडिंग को इंश्योर करने के लिए 6 डायमीटर ऑफ द बार, बस 2 चीजें आपने याद रखनी। ठीक है जी, ओके। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, नाउ सर ये जी प्लीज। सर ये डायमीटर ऑफ बार का जो रिलेशन है डेवलपमेंट लेंथ के साथ, ये मुझे समझ नहीं है कि डायमीटर बढ़ने से लेंथ की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ जाती है? वो इस वजह से कि आपको देन यू हैव टू यूज मोर फोर्स। आप जब डायमीटर ऑफ द बार इस्तेमाल करेंगे तो T = A Fy बढ़ता जाएगा ना। जब एरिया बढ़ेगा, Fy तो कांस्टेंट है, Fy तो अगर 60 तो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही डायमीटर आप बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा ना। तो जब एरिया बढ़ेगा तो आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, और ज्यादा फोर्स के लिए आपको ज्यादा लेंथ चाहिए। ठीक है सर, समझ गए? जी जी। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बता दिया ना कि अगर एरिया हमारे पास 1 इंच हो और यील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास 60 है, तो 60 किप का फोर्स आपको चाहिए ये डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आप 2 इंच एरिया करें तो 120 किप हो जाएगा, तो 120 किप के लिए तो वही लेंथ काम नहीं करेगी ना, और लेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी फिर। ओके, क्लियर? यस सर। Next is there are certain situations where the development length shall be satisfied. So there are few scenarios, very important situations where the development length requirement must be ensured. देखिए इसमें the beam reinforcement, ये assume करें कि ये एक टॉप स्टोरी है किसी बिल्डिंग की, और इसमें बीम की reinforcement is going into a column, और कॉलम बिल्कुल आखिरी कॉलम है जहां पर बीम के reinforcement आके टर्मिनेट हो जाती है। So this is the terminal end of the reinforcement of the beam as well as the terminal end of the reinforcement of the column. कॉलम के ऊपर स्टोरी में जाके बस खत्म हो जाएगा और बीम बिल्कुल आखिर में आके। तो the beam reinforcement should develop its full strength inside the column, and the column reinforcement should develop its full strength inside the beam. In other words, the development length of the column shall be ensured in the beam, and the development length of the beam shall be ensured inside the column. बात समझ रहे हैं आप? मतलब ये है कि ये जो डेवलपमेंट लेंथ बीम के रिइंफोर्समेंट, आप बीम के रिइंफोर्समेंट आप देख रहे हैं, वी आर टेकिंग द बीम रिइंफोर्समेंट टू द फार एंड इन द कॉलम, फार इधर नहीं छोड़ रहे हैं बल्कि इसको बिल्कुल आखिर तक ले जा रहे हैं, और ऊपर की भी। तो आपके इसकी जो डेवलपमेंट लेंथ है, डेवलपमेंट लेंथ जो बीम की रिइंफोर्समेंट है, ये कॉलम में डेवलप होगी, ठीक है ना, वरना ये इसमें से निकल आएगी। तो ये डेवलपमेंट लेंथ विद हुक की रिक्वायरमेंट आपको इसमें जो
अहम बात है वो ये है कि अगर आपको LDH की रिक्वायरमेंट, लेट से LDH की ये रिक्वायरमेंट आपको कहता है कि आप 24 इंच प्रोवाइड करें और आपका ये कॉलम 18 इंच का हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जी, एनीवन? अगर LDH यानी बीम के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ, क्योंकि हुक तो आपने दे दिया, ये अगर रिक्वायरमेंट इस तरह हो कि आप कम से कम 24 इंच दे दें, लेकिन हमारा कॉलम 18 इंच का है, तो फिर हम क्या करेंगे? बताएं जी। फिर कॉलम भी हमें 24 इंच का करना पड़ेगा। तो अहम बात इसमें यह है कि बाज़ वक़्त कॉलम लोड की वजह से नहीं, बल्कि डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट्स की वजह से कॉलम का साइज बढ़ाना पड़ता है। दिस इज ए न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, इस तरह से ये कॉलम की रिइंफोर्समेंट जब आगे से हम डेवलप इसकी लेंथ को देखेंगे, तो लेट से अगर इस डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट 24 इंच हो और बीम का अपना साइज 18 इंच हो, तो हम बीम का साइज सिर्फ इस डेवलपमेंट लेंथ को अचीव करने के लिए बढ़ाएंगे। अगरचे हमने डिजाइन अपना सारा खत्म किया होगा, लेकिन आखिर में ये काम हमें करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इन बातों को? बट एन experienced designers would know these things from the beginning, and he will make sure to assume sizes so that all the development and requirements are satisfied at the end. समझ गए आप? Yes, sir. Similarly, this is another situation जिसमें कॉलम की जो reinforcement है, it must develop its full strength inside the foundation. तो ये मुमकिन है कि फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो आपने एज्यूम की हो 15 इंच और आपके इस डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट 24 इंच आ जाए, और आप आखिर में इस बात पर मजबूर हो जाएं कि हमें इसकी थिकनेस 24 इंच करनी पड़ेगी क्योंकि ये कोड की रिक्वायरमेंट है। तो आप इस डेप्थ को बढ़ाते हैं किसी और वजह से नहीं, बल्कि वो डेवलपमेंट लेंथ जो कॉलम की स्टील की है उसकी वजह से आपको इसका साइज बढ़ाना पड़ा। मुमकिन? एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज सर, इस मसले को अगर हम 180 डिग्री बेंड दे तो फिर हमें साइज बढ़ाने की मसला नहीं आएगा ना सर? उसमें 180 डिग्री हुक जो है उसमें जो एफर्ट है ना, लेबर एफर्ट, वो ज़्यादा है, और उसमें जब आपका डायमीटर ऑफ द बार बढ़ेगा, डायमीटर ऑफ द बार ज़्यादा होता जाएगा, तो 180 डिग्री हुक को देना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है फील्ड में, उसको पूरा टर्न करना, बाज़ वक़्त तो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर मुमकिन हो तो कर सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा बड़े डायमीटर ऑफ द बार में मुमकिन नहीं होता। एक तो मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, जो लेबर होता है उनके लिए ना। हम जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, उसमें डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या मसले पेश आते हैं सबको हम देख कर चलते हैं ना। अगर आपका लेबर एफर्ट उसमें बहुत ज़्यादा लगता है और उसमें आपका काम सफ़र होता है, तो फिर हम उस चीज़ को नहीं करते और फिर एक और स्ट्रेटेजी की तरफ हम जाते हैं। तो इसमें अगर डायमीटर ऑफ द बार नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तक हो तो फिर 180 डिग्री का हुक तो हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर 7, नंबर 8 हो तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें बाजू का स्टील टूट जाता है। ठीक है सर। Now next topic is splicing of deformed bars. Splicing अंग्रेजी का लफ्ज़ है जिसको मतलब जॉइनिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि बाज़ वक़्त कोई कॉलम या बीम जब हम बनाते हैं, किसी साइट का विजिट अगर आपने किया हो, तो 2 बार्स को आपस में जोड़ते हैं, उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। स्प्लाइसिंग के 3 तरीके हैं। एक तो स्प्लाइसिंग का तरीका ये है कि आप उसको लैप करें या उसको ओवरलैप, आमतौर पे प्रैक्टिकली उसको साइड में लोग कहते हैं ओवरलैप कितना होना चाहिए। तो अगर एक बीम है, लेट से 60 फुट का बीम है और आपने 40, अगर आपके पास 40 फुट स्टील बार है, तो जाहिर है आपको 40 फुट उसमें कैसे देंगे, आपको 60 फुट चाहिए, तो आप 2 सरियों को आपस में लैप करते हैं, या उसको ओवरलैपिंग या लैपिंग कहते हैं। लेकिन 2 और तरीके भी हैं इसके, एक मैकेनिकल स्प्लाइसिंग है और एक वेल्डेड स्प्लाइस है। पहले हम लेप स्प्लाइस को पढ़ते हैं। लेप स्प्लाइस तो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने कई दफ़ा फील्ड में देखा होगा, इस किस्म की बार्स को आपस में लगाते हैं। इसका फ़ायदा ये है, अगर ये हम न करें तो नुकसान क्या है। देखें, ये स्टील बार जो इधर से आ रहा है, तो जब ये जहाँ पर ख़त्म होगा उस जगह जब ये हम बेंडिंग करेंगे, तो ज़ाहिर है ये अपना स्टील का जो ये स्टील अपना स्ट्रेस कंक्रीट को देगा। तो अगर इसमें ये लेंथ कम हो
तो इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। लिहाजा इसमें कम से कम कितनी लेंथ हमें चाहिए कि ये प्रॉपरली स्टील जो है अपना स्ट्रेस एक स्टील दूसरे स्टील को ट्रांसफ़र कर दे, इसको लैप लेंथ कहते हैं। ये कॉन्टैक्ट में भी हो सकता है, यानी प्रॉपरली आपका जिस तरह ये है एक दूसरे के साथ बांध दे, लेकिन अगर थोड़ा सा स्पेस भी इनके दरमियान हो तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोवाइड की स्पेस बहुत ज़्यादा ना हो। ये स्पेस कितना होगा? ये स्पेस जो है मैक्सिमम 6 इंच हो सकता है, और लेकिन 1/5 ऑफ दिस लैप लेंथ, ये लैप लेंथ जो आप ओवरलैप करते हैं इसके 1/5 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। लेट्स से कि अगर ये 20 इंच है तो 1/5 ऑफ दिस इज 4 इंच, तो 4 इंच 6 इंच से किसी भी सूरत में ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 4 इंच हो सकता है। इसको नॉन कॉन्टैक्ट ओवरलैपिंग कहते हैं और इसको कॉन्टैक्ट ओवरलैपिंग कहते हैं। आमतौर पर ये कॉन्टैक्ट ओवरलैपिंग ही हम प्रोवाइड करते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट बहुत कम इस्तेमाल होता है। Then there are two types of lay splices. एक को क्लास ए स्प्लाइस कहते हैं और दूसरे को क्लास बी स्प्लाइस कहते हैं। क्लास ए स्प्लाइस में लेंथ कितनी है? लेंथ 1 LD का मतलब है डेवलपमेंट लेंथ, तो आप समझ गए ना पिछले स्लाइड्स में। तो लैप जो है लैप लेंथ यानी ओवरलैपिंग लेंथ कितनी होगी? 1 टाइम्स डेवलपमेंट। जितनी डेवलपमेंट लेंथ है उतनी आप ओवरलैपिंग लेंथ देते। लेकिन क्लास बी स्प्लाइस में 1.3 टाइम्स डेवलपमेंट लेंथ, यानी अगर आपके पास लेट्स से डेवलपमेंट लेंथ 20 इंच है तो आपके पास लैप लेंथ जो है 26 इंच होनी चाहिए, 1.3 टाइम्स 20। ओके, किसी भी सूरत में लैप लेंथ 12 इंच से कम नहीं हो सकता है, 12 इंच कम से कम होना चाहिए। और क्लास ए और क्लास बी स्प्लाइस क्या है? क्लास ए स्प्लाइस की रिक्वायरमेंट इतनी सख्त है कि आमतौर पे क्लास ए स्प्लाइस हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम क्लास बी स्प्लाइस ही की तरफ जाएंगे। आगे आप देख लेंगे क्लास ए स्प्लाइस की रिक्वायरमेंट क्या है। Lap splices in general must be class B splices according to ACI code, except that class A splice is allowed when the area of the reinforcement provided is at least twice that required by analysis over the entire length of the splice, and when half or less of the total reinforcement is spliced within the required lap length. इसमें मतलब ये है कि क्लास ए स्प्लाइस के लिए जो दो रिक्वायरमेंट है ये बहुत सख्त हैं। एक तो ये कि मसलन आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट है 7 इंच किप, लेकिन आपने रीइंफोर्समेंट 200 इंच किप के लिए प्रोवाइड कर दी, तो इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो हाफ होगा फुल लोड पे, तो फिर आप क्लास ए स्प्लाइस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट 100 है और हम 200 के लिए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करें। दूसरा एक प्रैक्टिकल मसला है कि आप अगर आपके पास 6 बार्स हैं और आप स्टैगर्ड इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये कि 3 बार्स आप एक जगह पर प्रोवाइड करें, लैप करें, और 3 दूसरी जगह पर, तो ये भी प्रैक्टिकली काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है। लिहाजा आमतौर पे हम क्लास ए स्प्लाइस इस्तेमाल नहीं करते, हम क्लास बी स्प्लाइस इस्तेमाल करेंगे, और जिसका मतलब ये है कि हम 1.3 टाइम्स डेवलपमेंट लेंथ इस्तेमाल करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है? और ये लैप स्प्लाइस जो है नंबर 11 बार से ज़्यादा जब अगर होगा, आपका बार नंबर 11 से बढ़ जाए तो फिर ये काफ़ी अनइकोनॉमिकल हो जाता है। मैं एक दफ़ा ये एक डिज़ाइन कर रहा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिज़ाइन था एक, तो उसमें नंबर 11 बार हमने इस्तेमाल की। उसकी लैप लेंथ की रिक्वायरमेंट, अगर आप नंबर 11 लेंथ के लिए, नंबर 11 बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ मालूम करें तो आपको ये आइडिया हो जाए। ज़रा मालूम करें फॉर नंबर 11 बार। अगर आपके पास इक्वेशन याद नहीं है तो मैं इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ। नंबर 11 बार के लिए आप कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? दिस वन। ये जरा इससे आप नंबर 11 बार के लिए डेवलपमेंट लेंथ मालूम करें। सर 75.3। कितना? 75.3 इंचेस। 25.3। अब लैप लेंथ कितनी रिक्वायर्ड होगी? लैप लेंथ 97 जी 1.3 टाइम्स दिस, 97.89। ऑलमोस्ट 100 इंच।
ठीक है ना? 100 इंच फीट में कितना है? तकरीबन 8 साढ़े 8 फुट, ठीक है ना? अब अगर एक कॉलम है जिसकी लेंथ ही 10 फुट है तो उसमें 8.5 फुट तो लेप में चला जाएगा, तो बाकी फिर क्या रह जाएगा? हर कॉलम में आप लेप देंगे तो इसमें प्रैक्टिकली इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अगर आप नंबर 11 से ज़्यादा बार में लेपिंग देंगे तो वो बहुत हाईली अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। इसलिए उसको हम मैकेनिकल या स्प्लाइसिंग करते हैं या वेल्डिंग करते हैं। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग इज this thing. In this method of splicing, the bars in direct contact are mechanically connected through sleeves or other similar devices. ये एक स्लीव है, आप देख रहे हैं, इसमें एक बार इधर से इंसर्ट करते हैं और दूसरा इधर से इंसर्ट करते हैं और उसमें मैकेनिकल अंदर एक वेज होता है जिसके अंदर जाके फंस जाता है कंप्लीटली। इट लॉक्स इनसाइड दिस स्लीव। उसको आप खींचना चाहेंगे तो फिर वो लॉक उसको छोड़ता नहीं है, आप उसको फिर इसमें से खींच नहीं सकते। तो इसमें डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, लेकिन ये डिवाइस भी एक्सपेंसिव डिवाइस होता है, ठीक है। और इस डिवाइस की जो मैकेनिकल स्प्लाइसिंग है, जो कि स्प्लाइसिंग का मतलब जॉइनिंग है, लेप स्प्लाइस का मतलब जॉइनिंग विद लेपिंग, और दिस इज जॉइनिंग विद मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग, ओके। एसीआई कोड कहता है कि आप जो भी डिवाइस इस्तेमाल करें तो कम से कम इसकी स्ट्रेंथ 25% स्टील के यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि यील्डिंग के दौरान जब इसके ऊपर ओवरलोडिंग हो तो ओवरलोडिंग में स्टील यील्ड हो जाए, लेकिन इधर से क्योंकि इधर द फेलियर विल बी ब्रिटल, ये आपको डक्टिलिटी इंश्योर नहीं कर सकता मैकेनिकल, क्योंकि तो डिवाइस है, तो इसमें से ब्रिटल फेलियर होगा। द कोड वांट्स टू मेक श्योर दैट द स्टील यील्ड्स एट सम अदर लोकेशन इंस्टेड ऑफ ब्रिटल फेलियर और ब्रेकेज एट दिस पॉइंट। तो इसका स्ट्रेंथ जो है 125% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ होना, 125% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ। सिमिलरली वेल्डिंग भी मुमकिन है, वेल्डिंग भी आप कर सकते हैं। वेल्डिंग में फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। वेल्डिंग के हमने काफ़ी इधर प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के वेल्डिंग हम कर सकते हैं और उससे भी हम ये अचीव कर सकते हैं। और ये वेल्डिंग के लिए एक अपना कोड है, उस कोड को यूज़ करके वी कैन डू दिस वेल्डिंग। तो वेल्डेड स्प्लाइसेस, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और लेप स्प्लाइसिंग, ये 3 तरीके हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह है कि लेप स्प्लाइस की लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। तो लेप स्प्लाइस को हम उन जगहों पर जहाँ पर हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेसेस हों या क्रिटिकल लोकेशंस हों तो उधर हम लेपिंग नहीं देंगे। तो आप मुझे बताइए, रिइंफोर्स कंक्रीट बीम है हमारे पास, सिंपली सपोर्टेड, इसमें हम लेप कहाँ पर न दें? मिड पे, मिड स्पेन पे नहीं देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मिड स्पेन पॉजिटिव बार में, और नेगेटिव बार में कहाँ नहीं देना चाहिए? सर L/3 से पीछे, बिल्कुल, यानी कि सपोर्ट के ऊपर, डायरेक्टली सपोर्ट के ऊपर नहीं। तो नेगेटिव बार में आप सेंटर में दे सकते हैं ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन पॉजिटिव बार में मिड स्पेन में नहीं दे सकते हैं। और कंटिन्यूस बीम में भी आपने देखा होगा कि मिड स्पेन में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, फिर सपोर्ट के ऊपर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव, तो उसमें भी सपोर्ट के करीब करीब अगर आप दे दें लेप लेंथ, तो लेपिंग दे दें तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन दरमियान में पॉजिटिव बार में नहीं देंगे। ओके, ठीक है जी। Should we move ahead now? Yes sir. Yes sir. The final topic of today's lecture is the curtailment of reinforcement. If there is any question in the previous 2 topics, you can ask your question. Otherwise, we have 2 more slides to finish this lecture. Excuse me sir. Please. सर, ये कॉलम में जो स्प्लाइसिंग करते हैं तो वहाँ पर बेंडिंग देते हैं। कॉलम में जब स्लाइस देंगे क्या करते हैं? वहाँ पर थोड़ा सा बेंड देते हैं सर, और ये क्यों देते हैं? हाँ, वो तो इसलिए बेंड देते हैं कि एक स्टील बार को जब दूसरे के साथ आप उसी लोकेशन पे बेंड लेप देंगे तो मुमकिन नहीं है ना। मतलब अगर आपका स्टील बार उसी लोकेशन में 1.5 इंच का कवर है, नीचे भी 1.5 इंच का कवर, तो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बिल्कुल क्रॉस करेंगे हेड टू हेड, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा सा बेंड देंगे ताकि आप उसमें लेप प्रोवाइड करें, लेप के लिए बेंड देते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ गए कि नहीं? नहीं समझे सर। अच्छा, नहीं समझे आप।
देखिए अगर ये एक स्टील बार है कॉलम के अंदर, ये मैं पहले कॉलम बना दूं, ठीक है, ये कॉलम है और इसमें स्टील बार ऐसे आ रहा है और मुझे इधर लैप करना है, तो मैं ये लैप कैसे करूंगा? ये तो इसके साथ टकरा जाएगा इधर, तो मैं इसको थोड़ा सा बेंड देता हूं, ऐसे बेंड देता हूं और फिर इसके साथ ऐसे लैप कर देता हूं। और समझ गए? यस सर। इस तरह, इसलिए हम थोड़ा बेंड देते हैं। अच्छा, इस बेंडिंग का अपनी रिक्वायरमेंट है कोड की, इसको बेंट ऑफसेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंट ऑफसेट। बेंट ऑफसेट की रिक्वायरमेंट ये है कि इसका स्लोप कम से कम 1:6 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि ये बेंड जो आप करेंगे, तो अगर आप 6 इंच बेंड करेंगे तो 1 इंच बेंड करेंगे, तो इसमें कम से कम 6 इंच के लेंथ में 1 इंच बेंड करेंगे। डायरेक्ट आप बेंड नहीं कर सकते कि 90 डिग्री पर इसको बिल्कुल ऐसे बेंड करके ऐसे ले जाए, ये दिस इज नॉट अलाउड। आप इसको बेंड करेंगे इस तरह, मेरी इसको देखें मार्कर को, लाइक दिस, so that this 1 inch offset is achieved in 6 inch। समझ गए आप? यस सर। It's called bent offset। ठीक है, okay, so we were talking about the curtailment। Any other question? सर मेरा क्वेश्चन है, अगर एक साइड पे प्रॉपर डेवलपिंग लेंथ है, ओवरलोडिंग कंडीशन में लैप या नॉन कांटेक्ट लैप की मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या स्लिपिंग प्रैक्टिकली कभी देखने में आई है? इस तरह स्लिपिंग होती है नॉन कांटेक्ट में ओवरलोडिंग कंडीशन में? यस सर, सिर्फ ना, लैप। ना दोबारा क्वेश्चन करें, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ सका। सर एक साइड पे स्लैब है फर्ज करें, तो एक साइड पे अगर प्रॉपर डेवलपिंग लेंथ है और उसके कहीं दरमियान में स्लैपिंग हुई है, तो क्या वहां पर ओवरलोडिंग कंडीशन में स्लिपिंग इफेक्ट्स होते हैं? स्लिपिंग क्या मतलब? मैं नहीं समझा, स्लिपिंग क्या मतलब आपका? सर जैसे आपने एक वीडियो दिखाई थी स्टील में, मतलब जब उसको एलोंगेशन हो रही थी तो वहां पर स्लिपिंग आ गई थी। अच्छा, तो मतलब कंडीशन में से पॉसिबल प्रैक्टिकली आपको इस तरह की सिचुएशन हो जिसमें डेवलपमेंट हमने देखी हो कि बांड फेलियर हुई है कि नहीं हुई है, तो इसमें असल में डिपेंड करता है अल्टीमेट स्टेज कंडीशन पे। प्रैक्टिकली अल्टीमेट कंडीशन तो बहुत कम देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कंक्रीट पूरा क्रैक हो चुका होगा और बिल्कुल ये अल्टीमेट लोड पर होगा, तो उस वक्त ये डेवलपमेंट लेंथ की कंडीशन इस तरह से होगी। मैंने तो इस किस्म की कोई सिचुएशन प्रैक्टिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं देखी है। अलबत्ता ये है कि जो स्ट्रक्चर्स हम ओल्ड स्ट्रक्चर्स को जब हम ठीक करते हैं, तो उसमें जब हम रिइंफोर्समेंट ओल्ड स्ट्रक्चर के साथ नया स्ट्रक्चर बनाते हैं और उधर जब हम डेवलपमेंट लेंथ की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो उस किस्म की सिचुएशन उसमें हम क्या करते हैं कि हाई स्ट्रेंथ एपॉक्सी हम पहले एक ड्रिल करते हैं ओल्ड कंक्रीट के अंदर, और फिर उसमें हाई स्ट्रेंथ एपॉक्सी इंसर्ट करते हैं और फिर उसके अंदर स्टील बार रख देते हैं। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर का क्लेम जो है वो ये होता है कि 3 या 4 इंच या 5, मतलब कंक्रीट की जो डेवलपमेंट लेंथ है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अगर ये हम जो डेवलपमेंट लेंथ की पढ़ रहे हैं सिर्फ कंक्रीट की बांड स्ट्रेंथ के लिए हम पढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि ये कंक्रीट टू स्टील का बांड जो है ना उसके लिए है। अगर एपॉक्सी टू स्टील का बांड हो तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो, बहुत कम डेवलपमेंट लेंथ में वो अचीव कर सकते हैं क्योंकि उसकी बांड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैन्युफैक्चरर में कहता है कि बस सिर्फ आप चेंज ड्रिल करें, क्योंकि आप ओल्ड कंक्रीट में तो 24 इंच का ड्रिल नहीं कर सकते ना, तो हम चेंज का ड्रिल करते हैं, उसमें एपॉक्सी उसमें स्टील बार, फिर 24 घंटे इंतजार करते हैं। उसके बाद हम एक टेस्ट होता है उसको कहते हैं पुल आउट टेस्ट। द टेस्ट इज कॉल्ड पुल आउट टेस्ट। पुल आउट टेस्ट क्या होता है कि हम स्टील बार को फील्ड में जाकर एक जेक से उसको खींचते हैं और हम फोर्स अप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि आया ये स्टील बार इसमें से निकलेगा, मैन्युफैक्चरर का क्लेम ठीक भी है या नहीं। उसमें बाज़ वक़्त स्टील का बार पूरे का पूरा निकल आता है और यील्ड नहीं होता है। तो इस किस्म की सिचुएशन तो हम नए ओल्ड और न्यू कंक्रीट में जब हम इस किस्म के काम करते हैं तो उसमें हमने देखी हुई, लेकिन कोई बनी हुई बिल्डिंग में हाँ अलबत्ता ये है अर्थक्वेक के मेरे पास पिक्चर्स हैं, जब एक कॉलम दूसरे कॉलम के ऊपर जब हम बनाते हैं नेक्स्ट स्टोरीज में, उसमें अगर लेपिंग कम हो तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है, इसके मेरे पास पिक्चर्स हैं।
आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब कुछ लोग एक स्टोरी बना लेते हैं तो दूसरी स्टोरी के कॉलम के लिए 5, 6, 8 इंच 10, 12 इंच का एक स्टील बार छोड़ देते हैं ऊपर, और फिर वो कहते हैं कि इसके साथ हम बाकी सरियों को जोड़कर नई स्टोरी बनाएंगे। उसमें अगर वेल्ड न करें वो उधर, तो 12 इंच या 6 इंच का जो लैप है ये काम नहीं करता, और उसकी वजह से काफ़ी सारे बिल्डिंग्स हमारे 2005 के अर्थक्वेक में वो कोलैप्स हो गए थे। उसकी कुछ पिक्चर मेरे पास है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है? You can ask as many questions as you like, okay? एक्सक्यूज मी सर। Please. सर ये इस तरह होता है बाज़-औक़ात कि कुछ कंस्ट्रक्शन हुई भी होती है तो वो ऊपर उन्होंने जो आप बता रहे हैं कि एक्स्ट्रा लेंथ रीइंफोर्समेंट की वो नहीं अगर रखते, तो बाद में अगर उनको इंक्रीमेंट करना है तो फिर वो लैब कैसे प्रोवाइड करेंगे? उसमें अगर कुछ ना कुछ स्टील बार उन्होंने छोड़ा हुआ है तो चेंज में वेल्डिंग हो सकती है। अप टू 6 इंच अगर उन्होंने छोड़ा हुआ है तो उसमें वेल्डिंग हम कर सकते हैं, वेल्डिंग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं किया हुआ तो फिर हम हाई स्ट्रेंथ एपॉक्सी ड्रिलिंग में जाते हैं। उसमें ड्रिल कर लेते हैं, जो हम अवेलेबल कंक्रीट का कॉलम होता है उसमें ड्रिल कर लेते हैं 6 इंच 8 इंच, डिपेंड करता है हाई एपॉक्सी की स्ट्रेंथ पे, और उसमें स्टील बार इंसर्ट करते हैं। फिर पुल आउट टेस्ट उसको टेस्ट करते हैं, अगर टेस्ट पास हो गया तो फिर उसके साथ स्टील बार को आगे लगाकर उसमें कंक्रीट करते हैं। ठीक है जी सर। सर जी, मैंने एक प्रैक्टिकली बिल्डिंग देखी थी तो उसमें जो कॉलम के लैब थे वो सारे डिफरेंट लेवल पे थे। एक थोड़ा सा नीचे था तो कुछ थोड़ा ऊपर था, तो इसकी क्या रीजन है? जो कॉलम के 4 बार होते हैं 16 बार, डिफरेंट लेवल्स पे थे। कोड की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कॉलम में लैप सेंटर ऑफ द कॉलम में देना चाहिए, क्योंकि कॉलम के सेंटर पे अगर आपने कभी फ्रेम स्ट्रक्चर्स के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा किए हो ना, तो कॉलम के सेंटर में बेंडिंग मोमेंट 0 होता है और एंड्स पे बेंडिंग मोमेंट होता है। आपने कभी फ्रेम स्ट्रक्चर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको याद है तो उसको याद करें, उसमें बेंडिंग मोमेंट दरमियान में 0 होता है, तो लेप अगर हम दरमियान में दें तो अच्छा होता है। बाकी लोग क्या करते हैं, तो लोग तो मुख्तलिफ काम करते हैं, हम तो कोड की बात करेंगे ना। अगर लोग कोड से अलग काम करते हैं तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको हम उसकी कोई जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते कि वो ये काम क्यों करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। Okay, our last topic in today's lecture is the curtailment. Curtailment कहते हैं काटने को, reinforcement काटना. In the previous example of flexure design of beam, you would have seen that for a simply supported beam, we use the maximum bending moment at the center of the beam and calculated the reinforcement. और उस reinforcement को हमने पूरे beam के अंदर डाल दिया। अब आप should pay attention to my statement now. देखें, depending based on just one bending moment value, which is maximum at the mid span, we calculated the reinforcement. अब अगर bending moment हम जैसे जैसे ends of the beam की तरफ यानी सपोर्ट की तरफ आएंगे तो ये bending moment की वैल्यू काफी कम हो जाती है, जबकि इन जगहों में भी वही reinforcement हम इस्तेमाल करते हैं जो कि maximum bending moment के लिए हम यूज करते हैं। तो is it not more logical कि हम जैसे जैसे बीम के एंड की तरफ जाएं तो कुछ रिइंफोर्समेंट इसमें से कम कर दें? इज इट लॉजिकल और नॉट? यस सर। अगर हमने 6 बार्स कैलकुलेट किए हों इस बेंडिंग मोमेंट के लिए, एंड फॉर एग्जांपल लेट्स से हाफ वे बिटवीन द सपोर्ट एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हाफ वे बिटवीन दिस देयर इज अ पॉइंट वेयर द मैक्सिमम द बेंडिंग मोमेंट इज हाफ ऑफ दिस। अगर इसके लिए 6 बार तो उसके लिए 3 बार होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हावेवर हमारे पास इतने ज्यादा बार्स को मुख्तलिफ जगहों पर बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ चेंज करना ये नामुमकिन है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक मरतबा उस रिइंफोर्समेंट को कम कर देते हैं सपोर्ट्स के करीब करीब। अगर ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की बात हम कर रहे हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट्स के करीब बहुत ही कम होता है, लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट रिइंफोर्समेंट हम मालूम करते हैं उसको सपोर्ट के करीब हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो कम कर देने के फिर मुख्तलिफ तरीके हैं। एक, अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें हमारे पास बेंडिंग मोमेंट m
WUL² डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। अगर हमारे पास इस किस्म का केस है जिसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनेगा और बेंडिंग मोमेंट वैल्यू ये है, तो उसकी कर्टेलमेंट हम इस ग्राफ के मुताबिक कर सकते हैं। अब इस ग्राफ को आप जरा गौर से देखें। इसके एक वाई एक्सिस पे कर्टेलमेंट परसेंटेज है और एक्स एक्सिस पे जो डेसिमल दिए हुए हैं, डेसिमल ऑफ स्पैन लेंथ, इसकी स्पैन लेंथ है फ्रॉम द सपोर्ट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो ये आपको आसान हो जाएगा। लेट्स से मेरे इधर 6 बार्स हैं, 6 बार्स, 3 in 1 रो, जिस तरह बीम इस तरह है, and I want to curtail this 50%, 3 बार्स में सपोर्ट के करीब कर्टेल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसको मैं काट दूं। इधर तो 6 हैं, लेकिन आगे इधर इस लोकेशन पे, इन लोकेशन पे आई वांट टू कर्टेल दिस रीइंफोर्समेंट हियर एंड हियर। तो दिस विल बी कॉल्ड एज 50% रीइंफोर्समेंट कर्टेलमेंट, 50% कर्टेलमेंट। 50% पे मैं एक लाइन इस तरह लगाऊंगा और जहां पर ये इस मीट करेगा दिस कर्व, देन आई विल प्रोजेक्ट दिस एंड ड्रा दिस प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। और उधर मैं पढ़ लूंगा कि कितना डेसिमल है, तो ये 0.1 है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 0.2। ये कौन सा पॉइंट है? ये 0.14 है। 0.14 ऑफ व्हाट? ऑफ लेंथ ऑफ द बीम। अगर इस बीम की लेंथ है 30 फुट, 30 फीट, तो 0.14 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो जाएगा? सर 4.2। मतलब ये है कि सपोर्ट से एक साइड पे 4.2 फीट और दूसरे साइड पे 4.2 फीट। आई डोंट नीड दिस रीइंफोर्समेंट, यानी ये 3 बार मैं ले जाऊंगा पूरे, और बाकी ऊपर के 3 बार को मैं इस जगह पर काट सकता हूं। इधर तक ए लोकेशन तक आई विल प्लेस 6 बार्स, 3 and 3, बट आफ्टर दिस टिल द सपोर्ट्स आई विल प्लेस ओनली 3 बार्स। ये ऊपर के 3 बार को मैं इधर ही काट दूंगा, इधर काट दूंगा और आगे नहीं ले जाऊंगा। कुछ समझ गए आप इस बात को? यस सर। अच्छा, Yes, अब sir. अगर ये हमारे पास 3+2 बार्स हों, 3+2 बार्स, और मैं 2 बार्स काटना चाहता हूं, तो ये परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 2/5। दिस विल बी 40% कर्टेलमेंट। 40% कर्टेलमेंट, फिर मैं इधर आऊंगा। 40% curtailment will give you more length of curtailment, but less number of bars. 0.18 of L, now 0.18 of L, 0.18 of length कितना हो जाएगा? 5.4 फीट। अगर मैं 2 बार काटना चाहूंगा तो मैं 5 फुट पे कर्टेल करूंगा, लेकिन अगर मैं 3 बार काटूंगा तो 4 फुट पे करूंगा। इस तरह अगर मैं नंबर ऑफ बार ज्यादा काटना चाहूंगा तो ये परसेंटेज बढ़ते जाएंगे, मैं नीचे आऊंगा 60, 70, 80 फीट पे अगर मैं कर्टेलमेंट देखूं तो ये बहुत ही कम है, उसका मीनिंगलेस है फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो आमतौर पे जो कर्टेलमेंट हम करते हैं, इट इज फ्रॉम 40 to 50% और इवन लेस देन दिस। 50% से ज्यादा कर्टेलमेंट हम नहीं करते आमतौर पर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बॉटम रीइंफोर्समेंट। इसके प्रैक्टिकल एक कंडीशन मैं आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे ये बीम है, ये कॉलम है और ये बीम है सिंपल। इसमें रीइंफोर्समेंट इधर कर्टेल हुई है। अगर आप इसका सेक्शन बी भी देख लें तो 3+2 बार्स हैं, 3+2 बार्स। लेकिन सेक्शन ए आप देख लें इधर तो 3 बार्स हैं। तो ये कर्टेल हुई है और ये ग्राफ से आप निकाल सकते हैं दिस अराउंड 0.12 ऑफ L/8। ये अगर कम हो उसमें जो ग्राफ है, ये वैल्यू अगर उससे कम हो तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, ये दिस इज कर्टेलमेंट ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? एनी क्वेश्चन? हाँ, एक कंटिन्यूस बीम में हम कैसे करेंगे? दिस इज ए कंटिन्यूस बीम विद पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव। इसमें हम किस तरह करेंगे? अगर इसका डिटेल तरीका तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ACI कोड अलाउज अस टू डू कर्टेलमेंट अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स अगर हों आपके पास और
50% कर्टेलमेंट आप करना चाहते हो तो आप इसके मुताबिक कर सकते हैं। तो आप देखें ये इसके में L/8 पे ये कर्टेलमेंट सपोर्ट, पहले सपोर्ट से कोई कर्टेलमेंट नहीं है तो कर्टेलमेंट इज नॉट अलाउड हियर पहले सपोर्ट से, लेकिन दरमियान का जो सपोर्ट है इंटीरियर सपोर्ट उस पर कर्टेलमेंट है L/8 के बराबर। 50% कर्टेलमेंट हुई है एक बार, ठीक है, और इधर भी 50% कर्टेलमेंट है, अगर 6 बार हो तो 3 बार। और आप नेगेटिव को देखिए L1/3 L2/3 100% कर्टेलमेंट। सो इन द नेगेटिव 100% कर्टेलमेंट इज अलाउड इन नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, और पॉजिटिव बार में 50% से ज्यादा कर्टेलमेंट आप अगर आपने ये फिगर इस्तेमाल करना है तो आप नहीं कर सकते। 50% कर्टेलमेंट अगर आपने कर L1/8 L2/8 पे इस तरह से, और 100% कर्टेलमेंट आप इस तरह कर सकते हैं L1/3 L2/3। अच्छा, यू कैन सी दिस 0 इंच। व्हाट दिस 0 इंच मीन? 0 इंच का मतलब ये है कि ये जो बार है नीचे वाला ये उस बार के पीछे है, इसके ऊपर नहीं है। दिस बार इज बिहाइंड दिस बार। मतलब अब देखो इसका मतलब ये है कि एक बार पूरा है, इसके बाद जो बार है पीछे इसके उसको आपने काटा है, फिर दूसरा बार अल्टरनेट बार को आपने काटा है, एक बार को आपने अल्टरनेट बार्स को आपने एक्सटेंड किया, और फिर आपने इस तरह स्लैब में रिइंफोर्समेंट होती है। स्लैब में तो सिंगल लेयर की रिइंफोर्समेंट होती है, तो सिंगल लेयर रिइंफोर्समेंट मतलब है कि एक बार को आपने कंटिन्यू किया, दूसरे को आपने काट दिया, फिर दूसरे को आपने कंटिन्यू कर दिया, फिर तीसरे को, इस तरह से 0 इंच का मतलब है कि इसके पीछे जो बार है उसको हमने कर्टेल किया हुआ है। इसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन बीम की केस में इस तरह होगी। कॉलम की लोकेशन है, इसमें देखिए फर्स्ट सपोर्ट पे कोई कर्टेलमेंट नहीं है, सेकंड सपोर्ट पे L/8 पे कर्टेलमेंट, इधर भी L/8 पे। इसमें अगर हम सेक्शन 2B भी देखें तो 2B सेक्शन इज दिस वन वेयर देयर आर 3 + 2 बार, यानी नीचे 3 बार हैं, ये 3 बार और उसके ऊपर 2 बार और हैं, और उधर नेगेटिव में सिर्फ 3 बार हैं। लेकिन अगर आप 2A देख लें, 2A विच इज दिस सेक्शन, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कर्टेल है, नीचे 3 बार हैं और ऊपर आपको फुल 3 + 2 बार नजर आ रहे हैं इधर, क्योंकि 2 लेयर में है। ओके, और अगर आप एक सेक्शन इधर ले लें, एक सेक्शन आप इधर ले लें, तो फिर आपको नीचे भी 3 + 2 बार नजर आएंगे और नीचे ऊपर भी 3 + 2 बार नजर आएंगे। इज दिस क्लियर? Any question? This is the end of this lecture. You can study this lecture and all other lectures. If you have any question, you can ask your question. You can stop me during my lecture any time you want to ask question. You can ask question. You are welcome to ask questions, because this is your first course in reinforced concrete design, and I know that the subject is a little bit of practical oriented subject or field oriented subject. So there may be many things which are not clear to you. You can ask questions. I don't know कि आपको क्या चीज़ समझ आ गई और क्या चीज़ समझ नहीं, क्योंकि एक तो इसमें कैलकुलेशंस है वो तो मुझे इतनी डिफिकल्ट नज़र नहीं आ रही है, तो आसान है कैलकुलेशंस, लेकिन इसमें चूँकि फील्ड ओरिएंटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं वो अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई कैन शो यू द पिक्चर्स ऑफ और प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ जगहों पर जो हम काम कर रहे हैं। तो ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। प्लीज आस्क क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी। आप लोगों ने आज इंतजार किया कि हमारे एक मीटिंग थी बहुत ज़रूरी, उसके लिए मैं सेक्रेटरीट किया हुआ था, और स्कूल सेफ्टी पे एक मीटिंग थी, बहुत ज़रूरी मीटिंग, उसकी वजह से हमारा कुछ टाइम ज़ाया हो गया। लेकिन अगर आप अभी भी आपको क्वेश्चन हो तो आई कैन गिव यू टाइम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज़। सर यूनिवर्सिटी ओपन के बारे में हमारी यूनिवर्सिटी का क्या डिसीजन है? ये मुझे पता अभी तक नहीं है, मैं पूछ के फिर आपको बता सकता हूँ, अभी मुझे कुछ पता उसका अंदाजा नहीं है।
ठीक है सर, थैंक यू सर। Any other question? Okay, if there are no excuse me, questions, then please. सर TNL बीम्स के बारे में पूछना था, उसमें हम जो कैपेसिटी चेक अप्लाई करते हैं उसके मेथड में जो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी और वो चीज स्लाइड्स में नहीं थी। कैपेसिटी चेक में आपको क्या कंफ्यूजन आ रही थी, जहां तक आपने सवाल हल किया हो ना? जो जी सर, उसमें ए वैल्यू में हम पहले तो जो है वो विड्थ यूज करते थे रेक्टेंगुलर में वेब की ना, लेकिन अब हमारे पास फ्लैंज भी है, तो फिर अब हम फ्लैंज विड्थ यूज करेंगे या वेब विड्थ यूज करेंगे? किस चीज में फ्लैंज विड्थ इस्तेमाल करेंगे? सर जो ए वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे कंप्रेशन के लिए, जो ए वैल्यू होती थी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के केस में तो आप बी इफेक्टिव इस्तेमाल करेंगे ना? सर जिस केस में हमारे पास ट्रू टी बीम आ जाता है उस केस में, तो ट्रू टी बीम में भी आप बी इफेक्टिव तो इस्तेमाल होगा ना? बी इफेक्टिव तो जरूर इस्तेमाल होगा, सिर्फ उसका डेप्थ बढ़ जाता है ना, ए बढ़ जाता है। बी इफेक्टिव से आप क्या निकालेंगे? बी इफेक्टिव में से आप जब बी डब्ल्यू माइनस करेंगे ना, तो आपके पास जो ए सेफ्ट है वो निकल आएगा आराम से, वो तो विदाउट बेंडिंग मूवमेंट निकल आएगा ना, क्योंकि आप हर चीज उसमें मालूम है आपके पास। और फिर जब आपके पास दूसरी जो आप ट्रायल्स करेंगे तो बीडब्ल्यू के ऊपर करेंगे ना, क्योंकि आपने बीएफ तो एक दफा इस्तेमाल कर लिया ना। ओके सर, पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। Okay, so this is the end of this lecture. You can come up with question next time. Okay जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।